Good morning, class. Today we discuss topic classification of material. Okay. In classification of materials are two types. Basically, metals and non-metals. First we discuss metals, then after we discuss non-metals. Okay. Metals are two types. Basically, ferrous or non-ferrous metals. Ferrous metals are those metals in which iron. Ferrous metals are those metals in which iron is the main component. Ferrous metals are those metals in which iron is a main component, and non-ferrous are those metals in which iron is not main component. It may be iron present or not present. If iron present, iron percentage is very less. Okay. So let we discuss first ferrous metals. Here we write iron main content. Basically, iron is a main component in ferrous metals, and non-ferrous iron non-main component. Iron may be present or not present. Iron percentage is very less or negligible. Then we first discuss what is ferrous metals. Okay? Ferrous metals we classifies in two types. There is only two types of ferrous metals. First is iron and second is steel. We know iron is a pure metal. It is available in periodic table Fe26. But steel is not available in periodic table because steel is not a pure metal. Steel is a alloy. We know alloy is the combination of two components. One metal is compulsory. So steel is a combination of iron and carbon. So basically, steel is a alloy, and it is an alloy of iron and carbon. So steel is a alloy of iron and carbon, and iron is a pure metal. So these two types ferrous metals available. Then we classify iron. There is three types of iron. First is pig iron. Second is cast iron. Third is wrought iron. Okay, first we discuss what is pig iron. Pig iron is the low grade iron. When we get iron from ores in blast furnace, so we get pig iron. Pig iron is the basic form of iron. It is not basically more pure. It have iron percentage 90% something. In pig iron percentage is in range of 90% iron. In cast iron, 92 to 95% iron. In wrought iron, it up to 99.9% pure. Pig iron we get from iron ores. सबसे पहले हमें जो भी आयरन की फॉर्म मिलेगी, जैसे हम ओर्स को कलेक्ट करेंगे तो जिस भी ओर से हम आयरन लाएंगे सबसे पहले हमें पिग आयरन मिलेगा. ठीक है, जो पिग आयरन मिल जाएगा उसके बाद ही हम किसी भी जैसे कास्ट आयरन बनाना होगा तो हम उससे पिग आयरन से बनाएंगे. डायरेक्टली ओर से हम कास्ट आयरन और रॉड आयरन नहीं बना सकते. तो जो भी हमें बनाना है सबसे पहले पिग आयरन बनेगा. ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि जहां भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है
तो वहां पे पिग आयरन बनाने की फर्नेस अवेलेबल रहती है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस सभी प्लांट में रहती है। सबसे पहले ओर्स को लाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले पिग आयरन को बनाते हैं। ठीक है, पिग आयरन बनने के बाद जैसे हमें कास्ट आयरन बनाता है, उसी के बराबर में हम कास्ट आयरन वाली फर्नेस रखी रहती है, तो वहां से हम कास्ट आयरन को बना लेते हैं। तो पिग आयरन जो हमारा होता है वो किस फर्नेस के अंदर बनता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पिग आयरन बनता है हमारा। और जो कास्ट आयरन होता है हमारा वो किस फर्नेस के अंदर बनता है, कपोला फर्नेस के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको क्लियर करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, कपोला फर्नेस क्या होती है, पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस है। ठीक है, रॉड आयरन जो होता है वो हमारा रिवर वैली फर्नेस में बनता है। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो साइज में बहुत बड़ी होती है। जो कपोला फर्नेस होती है वो ब्लास्ट फर्नेस से छोटी होती है, और जो रिवर वैली फर्नेस होती है उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो अलग तरह से होती है। ब्लास्ट फर्नेस और कपोला फर्नेस में क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, फायर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है जो भी हमें रॉ मटेरियल डाला होता है। जबकि रिवर वैली फर्नेस में क्या होता है, इसमें इसमें डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूफ। ठीक है, तो आयरन के 3 टाइप्स हो गए, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉड आयरन। ठीक है, पिग आयरन सबसे बेसिक फॉर्म है आयरन की, 90% तक प्योर होती है। हमें आयरन के ओर्स लेने हैं, उससे हम पिग आयरन को बनाएंगे। ठीक है, जो कास्ट आयरन होता है हमारा वो 92 से 95% तक प्योर होता है। ठीक है, कास्ट आयरन बेसिकली कास्टिंग के काम आता है, और रॉड आयरन जो होता है हमारा वो डक्टाइल मटेरियल होता है, ये हमारा मेल्लेबिलिटी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो जो पिग आयरन है उसका यूज मोस्टली कहीं भी नहीं होता है। पिग आयरन का यूज क्या होता है, पिग आयरन हमारा एक तरह से बीच का कंपाउंड है, इससे हमें दूसरी चीजें बनानी है। ठीक है, तो पिग आयरन तो बनेगा ही बनेगा, उससे हम कास्ट आयरन और रॉड आयरन बना लेंगे। ठीक है, और जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, क्योंकि ये कास्टिंग के थ्रू बनता है। तो जहां पे हमें कास्टिंग के ऑपरेशंस करने होते हैं वहां पे हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा रॉड आयरन होता है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, और जहां पे हमें सीट मेटल शॉप का काम करना है, मतलब उसमें मेल्लेबिलिटी की प्रॉपर्टी हाई होती है। ठीक है, तो जहां पे हमें इस तरीके ऑपरेशन करने होते हैं हम वहां रॉड आयरन को यूज करते हैं। ठीक है, और रॉड आयरन सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म होती है आयरन की। ठीक है, इतना क्लियर। तो इसके बाद हम स्टील को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फेरस मेटल दो ही टाइप्स के हैं, एक तो आयरन और एक हमारा स्टील है। ठीक है, आयरन को हमने क्लियर कर लिया, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉड आयरन। नेक्स्ट क्लासेस में हम 1 बाय 1 पिग आयरन को, कास्ट आयरन को और रॉड आयरन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब हमारा क्या है, स्टील। जो स्टील है हमारा ये बेसिकली क्या है, एलॉय है। स्टील किसका एलॉय है, हमारा आयरन और कार्बन का एलॉय है स्टील। ठीक है, तो स्टील बेसिकली एलॉय हो गया। स्टील क्या हमारे क्लासिफिकेशन करें तो स्टील को बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक तो होता है प्लेन कार्बन स्टील, एक हमारा प्लेन कार्बन स्टील हो गया, और एक हमारा होता है एलॉय स्टील। जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील होता है उसमें केवल आयरन और कार्बन होता है। ठीक है, ओनली आयरन और कार्बन। और जो हमारा एलॉय स्टील होता है इसमें आयरन कार्बन तो होता ही है, और अदर एलॉइंग एलिमेंट्स और होते हैं हमारे। ठीक है, तो इतना क्लियर। तो जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील है उसमें केवल आयरन और कार्बन है। ठीक है, एलॉय स्टील में हमारा आयरन, कार्बन और उसके अलावा अदर मटेरियल और है। ठीक है, तो जो प्लेन कार्बन स्टील है वो भी हमारे 3 टाइप से क्लासिफाई हो सकते हैं। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं इसके। एक होता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, एमएस जिसको आप बोलते हो एमएस। ठीक है, तो ये हमारा माइल्ड स्टील हो गया। ठीक है, लो कार्बन स्टील में जो आयरन की परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी परसेंटेज काफी कम होती है लो कार्बन स्टील में। ठीक है, लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें आयरन की परसेंटेज काफी कम होती है, उसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है 0.15 से 0.3% तक कार्बन इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 0.15 टू 0.3% की रेंज में इसमें कार्बन होता है। ठीक है, और जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है इसमें जो हमारा स्टील होता है वो 0.3 से 0.6% की रेंज में रहता है। ठीक है, और जो हाई कार्बन स्टील होता है इसमें जो स्टील की कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.6 से 1.2
1% की रेंज में रहती है। ठीक है, तो ये हमारे ठीक है, तो ये लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील को हमने समझ लिया। लो कार्बन स्टील क्या होते हैं, जिसमें इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.15 से 0.3% के बीच में होती है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6% के बीच में, हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.1% के बीच में कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, तो ये प्लेन कार्बन स्टील है, इसमें केवल आयरन और कार्बन है। ठीक है, जो हमारे एलॉय स्टील होते हैं इसमें आयरन कार्बन के अलावा अदर मटेरियल्स और होते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेटर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप कुछ एग्जांपल समझ लो, उसके तो बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। जैसे एक हो गया हमारा एचएसएस, हाई स्पीड स्टील हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है एक तरह से। ठीक है, एलॉय स्टील का। एक हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आयरन क्रोमियम के आयरन और कार्बन के अलावा अदर मटेरियल्स और होते हैं, जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए इनमें अदर मटेरियल्स को हम और मिला देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, एलॉय स्टील हो गए। ठीक है, तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, फेरस मेटल्स को हमने डिस्कस कर लिया। फेरस में बेसिकली आयरन और स्टील थे। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा आयरन स्टील वाला हो गया। क्लियर, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में मेटल वाला पोर्शन में फेरस मेटल का आयरन और स्टील वाला पोर्शन क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ नॉन फेरस मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है।